वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अकलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om. तो आज के जो हमारे सहअतिथि और निर्णायक हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं सर और हमारी संस्था के मैं सभी अतिथियों का स्वागत वंदन करता हूँ सांसद परिवार की ओर से। के माध्यम से जिन बच्चों के माता पिता का और निःशुल्क स्वर्ण प्राशन देने का कार्य भी किया है, हमें नाम भी दर्ज है। साथ ही साथ आयुर्वेद एवं पंच कर्म के उत्कृष्ट कार्य हेतु महाराष्ट्र में वैद्य गोगटे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इतने प्रतिभावान और ख्याति प्राप्त डॉक्टर साहब हमारी संस्था में पधारे हैं। भीमा नायक महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं, जो लगभग 30 वर्षों से आर्ट एंड क्राफ्ट में अपना योगदान देते आ रहे हैं। साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं।
आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी संस्था के आधार स्तंभ हमारी संस्था के प्रिंसिपल सर डॉक्टर अनिल जी पाटीदार कर रहे हैं। चौहान सर भी मंच पर उपस्थित है। मैं एक बार सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। अभी जान दिया भजन ये देने वालों मांगने वाला
सुंदर प्रस्तुति। यादव को हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा बुके पुष्पदल देकर सम्मानित किया जा रहा है। उनके स्वागत के लिए एक बार मैं पुनः हमारे सर से आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियां बजती रहे। साथ ही एसएजी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारी संस्था के प्राचार्य व हमारी सिंह तोमर को आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और हमारे एक बार पुणे में हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए हमारे संघ पर आए और आज के जो हमारे विशेष अतिथि और हमारी संस्था के उपाध्यक्ष महोदय श्री सुनील जी पाटीदार को पुष्पदल देकर सम्मानित करें। इससे पहले हमारे जो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से पहले भी स्वागत भाषण के लिए And my dear friend, wishing you all a blissful Children's Day. This is Miss Krishna Patidar, Vice President of Sarthak Academy. It's my immense pleasure to welcome you all. From the bottom of all have gathered here. Today we are celebrating Children's Day. My dear friends, we celebrate Children's Day on 14th of November to honor the birthday of India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. He has to believe that children are the future of the nation. Therefore, the day was established to celebrate children, acknowledge their importance and promote their well-being, education and rights. My dear friend, someone has truly said that when a child comes into your life, so it's the high time to relearn from them, not to teach them. My dear friends, when you enter an atom, you will see three elements in the atom: electron, proton, neutron. When you take birth in the material world, you will see three modes of nature: Satagun, Rajagun, Tamagun. When you enter the spiritual world, you will meet three demigods: Brahma, Vishnu, Mahesh. The way you are getting to see electron, proton, neutron in the atom, Satagun, Rajagun, Tamagun in the material world, and Brahma, Vishnu, Mahesh in the spiritual world. Similarly, when you enter Sarthak Academy, you will get to see three pillars of our school: Shiksha, Anushasan and Sanskar. Sarthak Academy has the history to produce great students in the field of education. Miss Nehal Sandipji Patidar, who has been the district topper in 2023 to 24. This target was only possible when there was discipline within the students. And discipline does not mean to control someone or something. It means having the sense to do exactly what is needed. And third and the most crucial pillar of our SAG is Sanskar. When the student enter the school, they touch the lotus feet of their teachers and threshold of school with the greeting of Jai Shri Krishna. And this third pillar Sanskar is so significant in students' life that when students reach at the top in our life, they remain down to earth. Now I would like to wind up my speech hereby expressing my humble gratitude to the esteemed chief guest who joined us to liven up this program, and a special thank to our driving force of this school, respected principal sir, who always enlightens the school with his positive ideas. I hope enjoy the event and live with valuable insight. Now I will take your leave now with some beautiful lines. कि जरा से झोंके को तूफान कहते हो, कि जरा से झोंके को तूफान कहते हो, जरा सा छप्पर है आसमां कहते हो, उठो पहचानो मृग मरीचिकाओं को, उठो पहचानो मृग मरीचिकाओं को, मुट्ठी भर रहे थे रेगिस्तान कहते हो, मुट्ठी भर रहे थे रेगिस्तान कहते हो। थैंक यू।
और रोज खाते हैं, वो बनाने में क्या क्या लगता है ये भी जानते हो? वो बनाने में क्या क्या लगता है ये भी जानते हो? खाने में नमक ज्यादा है कहकर मुंह बनाते हो, खाने में नमक ज्यादा है कहकर मुंह बनाते हो। गरम तेल चूल्हे की तपन पहचानते हो? थाली रोज सजती है, थाली रोज सजती है, नियमित समय पर थाली रोज सजती है। उस बनने से सजने तक की प्रक्रिया में बहुत मेहनत लगती है। कमर की अकड़, सब्जी वाले को पकड़, उस आँच की तपन, वो कारीगर सी लगन, वो स्वाद लाने के हजारों जतन, बस खा के आपका खिल उठे मन, इस इच्छा से रोज थाली सजती है। उस बनाने वाले की तारीफ कभी कर दो, उस बनाने वाले की कभी तारीफ कर दो, और अगर ऐसा रोज कर दो तो थाली सजाने वाली क्या, थाली भी मुस्कुराएगी, सच में बात बन जाएगी। कितने ऐसे भी है जिनको मिलता भी नहीं, कितने ऐसे भी है जिनको ये मिलता भी नहीं। हर किसी की किस्मत में खाना कहाँ होता है? सोचिए, अगर हर किसी की किस्मत में खाना नहीं होता है, खाना अच्छा या बुरा नहीं होता है, खाना अच्छा या बुरा नहीं होता है। इसलिए आप लोग एक बार जो हमारे बच्चों ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए, लगभग 74 से 75 फूड फेस्टिवल में बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इतने स्टॉल लगे हुए। एक बार आप सभी पालक महोदय जिन हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए हर लजीज व्यंजन का लाभ लेंगे। Now I would like to request our orchestra group, हमारे ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने संगीत के माध्यम से कई ऐसी प्रस्तुतियां दी है जिनके द्वारा हमारा मन प्रसन्नित हुआ है। संगीत की महिमा अनंत है, संगीत की महिमा अनंत है। संगीत की शास्त्रता जहाँ साधना को महत्व देती है, वहीं उसकी मधुरता आत्मिक शांति और जीवन जीने की उमंग उत्पन्न करती है। संगीत के गीतों को सुनकर जहाँ आदमी थिरक उठता है, वहीं करुणा में डूबकर आंसू बहाने पे मजबूर हो जाता है। एक ऐसा ही गीत और राग का कारा हमारे संगीत के द्वारा पेश किया जाएगा। जोरदार तालियों से हमारे संगीत दल का स्वागत करें। वो राग का सभी पेरेंट्स से मेरा करबद्ध अनुरोध है, बैठक व्यवस्था समुचित है। आज हमारे बीच एक अच्छी शख्सियत आई है जो 5 मिनट आपसे रूबरू होंगे। आयुर्वेद और पंचकर्म के विशेषज्ञ हैं जो हमें हमारे स्वास्थ्य और बच्चों के बारे में भविष्य में क्या जानकारी होना चाहिए। फूड फेस्टिवल पूरा दिन है हमारे पास। मैं जानता हूं कि सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा, ये हमारी सोच है, पर उस सोच से थोड़ा बाहर निकलकर आज हम कोई अच्छी चीज़ हमें मिल रही है तो हम उसका आनंद जरूर लेंगे। मंच के दाईं ओर जो बंधु खड़े हुए उनसे निवेदन है वे मंच के सामने जो बैठक व्यवस्था है वहाँ पर आकर बैठ जाए, और परिसर में भी जो पालक घूम रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे मंच के सामने आकर बैठ जाए। धन्यवाद। सा सा सा, ओ रा रा रा।
उन्होंने खाना खाया भी नहीं होगा। हालांकि मेरा समय सुबह 9:30-10 बजे के आसपास का खाने का है, तो मैं तो जल्दी से खा के आ गया। पर फिर भी अपनी पूरी आवाज को शरीर में एकाग्र कीजिए और अपने कंठ से बाहर कीजिए, तभी तो पता चलेगा। देखिए, कार्यक्रम बड़ी मुश्किल से होते हैं और छोटे से बच्चे के लिए गैदरिंग क्या होती है ये हमसे अच्छा कौन जान सकता है, क्योंकि किसी समय हम भी बच्चे थे और हम भी मंच पे कूदते थे, फुदकते थे। तो एक साथ एक स्वर में जोरदार तरीके से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी लोग माननीय, सम्माननीय और सम्माननीय सभी जनों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सार्थक एकेडमी की सार्थकता को चिरकालीन तक बनाए रखने वाले यहाँ के समस्त प्रबंधक मंडल को मैं प्रणाम करता हूँ। प्राचार्य महोदय जो कि नींव होते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। उन नौनिहालों के माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को अत्यंत विश्वास के साथ में इस संस्कार और ज्ञान देने वाली संस्था के सम्मुख आपने यहाँ पर न्योछावर तो नहीं बोलूंगा, आपने समर्पण के साथ भी अपने को यहाँ पे भेजा, बच्चे को यहाँ पर भेजा। उसी के साथ मैं सारे बच्चों और विशेष तौर पे संगीतकारों की टीम को इसलिए प्रणाम करता हूँ क्योंकि इतनी गर्मी में तपते हुए वो आपके सामने बैठे रहे, ये उनके अनुशासन की पराकाष्ठा है। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। समय तेजी से बदलता जा रहा है, हर क्षण समय बदलता जा रहा है। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जब आदरणीय पाटीदार सर ने मुझे कहा कि आपको यहाँ पर आना है और बच्चों को कुछ बोलना है, माता पिता को कुछ बोलना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के बीच में जाना। और विशेष तौर पे बच्चों के बीच में जब माता पिता बैठते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। देखिए, सिर्फ किसी विद्यालय में अच्छी तरीके से शिक्षा मिल रही है वो काफ़ी नहीं है, सिर्फ संस्कार विद्यालय में मिल रहे हैं वो भी काफ़ी नहीं है। बच्चे के लिए सबसे ज्यादा काफी चीज होती है उसके घर पे जो परिवेश है, वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किस प्रकार का जीवन जी रहा है, अपने माता पिता को वो बच्चा देखता है। जैसे हमारे यहाँ स्वर्ण प्राशन का कैंप होता है, सार्थक एकेडमी में आज पहली बार आना हुआ है, पर हर 27 दिन में मैं सार्थक एकेडमी का नाम सुनता हूँ क्योंकि यहाँ के बच्चे मेरे पास में स्वर्ण प्राशन के लिए आते हैं। जब मैं पूछता हूँ आप कहाँ पढ़ते हो, वो जय श्री कृष्ण बोलते हैं और बोलते हैं हम सार्थक एकेडमी में पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जब कोई जय श्री राम बोलते हैं, तो अलग अलग तरीके से संबोधन होता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं। एक दिन एक माँ मेरे पास में आई, बहुत दुखी, और गोदी में 3 साल की बेटी थी। वो बेटी भी मुंह बनाए हुए थी, दवाई पिलाने के लिए उसको मेरे पास लेकर आए थे। बोले सर आप इस मेरी बेटी को समझाओ कुछ। मैंने कहा क्या बात है? बोले हर रोज जब तक पानी पूरी न खा ले, पानी बताशे न खा ले, तब तक रात का खाना नहीं खाती, शाम को इसको पानी बताशे लगते ही लगते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3 साल की बच्ची जब तक पानी बताशे न खा ले तब तक मतलब खाना नहीं खाती। तो मैंने कहा ये पानी बताशे की दुकान पे जाती कैसे है? तो वो धीरे से अपनी गर्दन को नीचे करती हैं और मुस्कुराते हुए बोलती है कि सर मैं खाने जाती हूँ, तो ये भी साथ में जाती है। अब आप एक बात बताओ कि मुंह में राम और बगल में छुरी, माताएं बहनें खुद पानी पूरी का आनंद ले रही हैं, तो फिर बच्चे कैसे सुधरेंगे? अच्छा, अलग अलग तरह के माता पिता हमारे पास में आते हैं। एक दिन एक मम्मी आके रोने लगी, बोले सर मेरा बच्चा जो है वो हमारे हाथ से निकल गया, 2.5 साल का बच्चा, जिसने अभी अभी थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा। और उसने क्या बोलना सीखा आपको बड़ा मजा आएगा सुनकर, दुख भी होगा। मैंने कहा क्या बात है? बोले सर ये जब सुबह उठता है ना तो मम्मा मम्मा पापा पापा नहीं बोलता है। बोलते क्या बोलता है? ये टूटी फूटी जुबान में मोबाइल बोलता है, इसको मोबाइल चाहिए। ये रात में एक समय था जब रात में बच्चे रोते हुए उठते थे तो बोलते थे मम्मा या मम्मी या माँ, है ना? वो रात में उठता है रोते हुए तो वो मोबाइल बोलता है। 2.5 साल का बच्चा, तो ये 2.5 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल कहाँ से आया और किस प्रकार से आया? हमने ही तो दिया। वो रो रहा था तो हमने झटपट उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। वो खाना नहीं खा रहा था तो हमने झट से उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। इसमें गलती किसकी है? बच्चे की। भाई आज जो वो देख रहा है, आज अगर वो आपको व्यसन करते हुए देख रहा है तो गारंटेड वो आपसे बड़ा व्यसनी बनेगा। क्योंकि जब दशरथ थे तो दशरथ, राजा दशरथ का नाम हम सभी ने सुना है। राजा दशरथ की संतान राजा दशरथ से सहस्त्र गुना आगे निकली। तो इस बात का बिल्कुल खातिरपूर्वक विश्वास कर लीजिएगा, जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, आगे चलकर आपका बच्चा उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में खाएगा और पिएगा। तो
हालांकि यहाँ पे बात बच्चों की होना चाहिए, पर बच्चों को जो है भेज रहे हैं वो तो सबसे आगे बैठे हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हीं से बात करना पड़ेगी। हम लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की और समझने की आवश्यकता है। पैकेज्ड फूड जितना आ रहा है, कुरकुरे, बिस्किट वगैरह, जो नमकीन जो आ रही हैं, जितनी चीज़ें, उसमें अजीनोमोटो नाम से एक विशेष प्रकार का मसाला है। ये मसाला जीभ की स्वाद ग्रंथियों को लकवाग्रस्त कर देता है, किसी भी चीज़ के टेस्ट को बढ़ा देता है, एनहेंस कर देता है। आप लोग शादियों में गए होंगे, शादियों में समय चल भी रहा है, और शादियों में क्या होता है कि आपने देखा होगा एक ढाबे का स्टॉल होता है, उस ढाबे के स्टॉल पे तंदूरी रोटी मिलती है, तंदूरी रोटी के साथ में उस ढाबे के स्टॉल पे दाल मिलती है। वो दाल बड़ी जायकेदार होती है, बहुत अच्छी लगती है, उसके सामने सारी सब्जियां फेल हो जाती हैं। क्यों? आपके घर में वो दाल क्यों नहीं बन सकती? इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि आपके घर में अजीनोमोटो नहीं है, और अगर आपके घर में अजीनोमोटो नहीं है तो आप समझ लो कि आप लोग बचे हुए हो। दुष्परिणाम आगे चलकर ये होंगे कि भारत की वंशवृद्धि उसी तरह से रुक जाएगी जिस प्रकार से रशिया की रुकी थी। वंशवृद्धि समझ रहे ना, पुत्र के बाद में पुत्र तो होगा पर उसका पुत्र होगा नहीं। ये वैसा ही है कि जैसे पहले हम ऑर्गेनिक दाने डालते थे, पपीते का बीज डालते थे तो पपीते से पपीता निकल आता था, पर अब बीज डाल के देख लीजिए पुराना, उस बीज से नया बीज नहीं निकलता। हम लोगों ने फसलों में तो झोलझाल कर दिया। हम लोग गाड़ी लाते हैं तो तिथि नक्षत्र बार और होरा देखकर लाते हैं। हम लोग शादी करते हैं तो पंडित जी से बढ़िया मिलान करते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। ये बात अलग है कि जो शादी का समय है वो नाचने गाने में खत्म हो जाता है और पंडित को बोलते हैं जरा जल्दी भाव में लगवाओ। मतलब हमारे संस्कारों में भी हमने झोलझाल कर दी है। पर जब बात बच्चे की आती है तो सबसे अच्छा माता पिता आज की तारीख में कौन कहलाता है? बढ़िया कपड़े पहना दे। वो एक चीज मांग रहा है तो आपने 4 चीजें उठा के दे दी। आप याद रखिएगा, आप विषैले अभिभावक बन चुके हैं। विषैले अभिभावक कैसे बन चुके हैं? आपको पता है कि कुरकुरे के अंदर क्या है। अन्न को उगाने वाला किसान जानता है कि उस अन्न के अंदर क्या है। कई सारे पेशेंट आते हैं, भाई मैं तो इसी क्षेत्र का हूँ, इसी क्षेत्र के कई सारे कृषक परिवार हमारे पास में आते हैं, और जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप खाने में क्या खाते हैं, कईयों का यह कहना है कि हम सिर्फ दाल और रोटी खाते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जी में हम क्या डाल रहे हैं हमें पता है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अगर किसी प्रकार से छोटी सी क्यारी बनाकर अपने कम से कम अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा उगा सको तो उगा लो। इसी क्षेत्र के एक परिवार का केस आया था, दादा को कैंसर। दादा को कैंसर, किसके दादा की बात हो रही है? 2.5 या 3 साल के बच्चे के दादा की बात हो रही है। बच्चे के पिता को कैंसर, यहां तक तो ठीक था, उस बच्चे को भी कैंसर का डिक्लेरेशन। मतलब पीढ़ी समाप्त होने की कगार पे आ रही है ना। जो पंजाब में हुआ वो हमारे क्षेत्र में भी हो रहा है। इसलिए हमें कोशिश ये करना है, मैं ये तो नहीं बोलता कि हम पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हो जाएंगे, पर कम से कम अपने परिवारों के लिए हमें ऑर्गेनिक होना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए हमें ऑर्गेनिक होना पड़ेगा। एक छोटी सी दंत कथा है, दंत कथा मतलब बनाई हुई कथा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक स्कूल, सार्थक एकेडमी की ही तरह एक बहुत अच्छा स्कूल, उस स्कूल में बच्चों की सबसे चहेती क्लास टीचर क्या करते हैं, कभी कभी बच्चों को कुछ टास्क देते हैं कि इसके बारे में आपको कुछ लिखना है, उसके बारे में लिखना है, आपको ये करना है, एक्टिविटी। तो उन टीचर ने एक टास्क दिया कि माय विश मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, इसके ऊपर आपको कुछ लिख के लाना है। बच्चों ने तरह तरह के बहुत अच्छे लेख लिखे। देखो बच्चों में बहुत क्रिएटिविटी होती है। बच्चों को बस ये है कि आप मैदान में छोड़ दो, बच्चों को ये है कि आप गुल्ली डंडा दे दो, बच्चों को ये है कि आप अंटी दे दो, बच्चों को ये है कि आप सितोली दे दो, बच्चों को ये है कि आप पर्वतों पे ले जाओ, बच्चों को ये है कि बावनगजा के झरनों में ले लाओ, बच्चों को ये है कि नर्मदा के किनारे ले जाओ और उनके कपड़े उतार के उनको पानी के अंदर थोड़ी देर डाल दो, फिर उनसे पूछो तुम्हें क्या पसंद है। यकीन मानो अगर 15 दिन आपने चेंज कर लिया ना, 16वें दिन वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे मोबाइल पसंद है, मुझे कार्टून पसंद है, मुझे मोटू और पतलू पसंद है। तो बच्चों ने तरह तरह की चीज़ें लिखी, बहुत अच्छा लिखा। अब होता यह है कि जब कई सारे बच्चे लिखते हैं तो टीचर कई बार वो कॉपी घर पे ले जाते हैं और फिर चेक करते हैं। मतलब टीचर का एक दायित्व ये भी तो है कि वो यहाँ पर सार्थक एकेडमी में जितना काम कर रहा है उसके अतिरिक्त भी उसकी ड्यूटी होती है। ये बच्चा कमज़ोर है तो इसके लिए मुझे और क्या करना है। अमूमन मैं जानता हूँ कि हर शिक्षक ये सोचता ही है। तो क्या हुआ कि वो मैडम वो जो बच्चों की कॉपियाँ थी उनको अपने घर लेकर चली गई। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चों की कॉपियों को वो घर पे चेक कर रही थी। पास में डबल बेड पे उनके पति मोबाइल में कुछ चला रहे थे, कुछ काम का चीज़ देख रहे थे। बाहर सोफे पे उनकी सास बैठी हुई थी और रील्स देख रही थी।
किसी का ध्यान किसी की तरफ था नहीं। थोड़ी देर में क्या होता है कि मैडम की आंखों से थोड़े थोड़े बात होने लग जाता है, आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। धीरे से क्या होता है कि वो आंसू सिसकी में आ जाते हैं। जब रोना थोड़ा ज़्यादा होता है तो सिसकी आने लगती है ना, मैडम को सिसकी आने लग जाती है। उनके पति का ध्यान जाता है तो देखते हैं कि झाड़ झाड़ आंसू पत्नी की आंखों से गिर रहे हैं। वो बोलते हैं कि क्या हुआ? तो बोली नहीं कुछ नहीं। नहीं बताओ क्या हुआ? बोले ये बच्चों को माय हॉबी नाम से माय विश नाम से जो है वो हमने निबंध लिखने के लिए दिया था और बच्चों ने लिख कर लाए हैं। तो बोले इसमें रोने की क्या बात है? बोले इसमें रोने की बात ये है कि एक बच्चा है, उस बच्चे ने माय विश में एक चीज़ लिखी है कि मोबाइल को दुनिया से हटा दो। बोले यार बच्चे तो मोबाइल मांगते हैं, ऐसा कैसे लिख दिया कि मोबाइल को दुनिया से ही हटा दो? बोले हाँ इसने लिखा है और उसका कारण भी दिया है। बोले क्या कारण दिया है? कारण ये दिया है कि जब मैं स्कूल से थका हारा अपने घर जाता हूँ तो मेरी मम्मी मेरे हाथ में खाना देती है और मोबाइल थमा देती है। जब मेरे पिताजी काम से आते हैं खेती बाड़ी से, उनके हाथ में मोबाइल ही रहता है। मेरे दादा जब कभी मेरे साथ बाहर जाते हैं तो उतने ही समय मुझे लाड़ प्यार करते हैं, उनके हाथ में भी मोबाइल रहता है। बुआ के हाथ से तो मोबाइल छूटता ही नहीं है। तो इस मोबाइल को इस दुनिया से दूर कर दो। उसने दूसरा भी ऑप्शन दिया, या अब आप इस ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा और अपने बच्चे के अंदर देखिएगा, या हे भगवान मुझे मोबाइल बना दो। मुझे मोबाइल बना दिया गया तो मैं अपनी मम्मी के हाथ में रहूँगा, मैं अपनी बुआ के हाथ में रहूँगा, मैं अपने पिता के हाथ में रहूँगा, मैं अपने दादा दादी नाना नानी, मैं अपने पड़ोसियों के हाथ में रहूँगा। मुझे मोबाइल बना दो। ऐसा कह के वो जोर जोर से रोने लगती है। पति एकदम से पूछता है कि तुम कौन रो रही हो? बच्चा कौन है? इतना इंटेलिजेंट बच्चा कौन है? तो रोते हुए बोलती है कि हमारा मोनू, ये हमारी ही तो क्लास में पढ़ता है, उन्हीं का खुद का बच्चा, ये उसकी विश है। आप अपने बच्चे को विश दे रहे हो, अमृत दे रहे हो, तो आप खुद जानते हो, हम खुद जानते हैं अच्छा खाना खिलाना चाहिए। ये मौसम रूखी सूखी चीज़ों का नहीं है, शरद ऋतु लग गई है। जब दिवाली आती है तो दिवाली पे अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है ना, लड्डू बनते हैं, बढ़िया चकली बनती है। अब समय आ गया है, गाजर आने वाली है, बच्चों से मैं बोलूँगा गाजर का हलवा खूब खाओ। गाजर को खूब खाना चाहिए। हर रोज घर में इस समय बच्चों को हलवा खिलाना चाहिए। बच्चों को खाली पेट कभी भी अपने को स्कूल में नहीं भेजना है। एक स्कूल में बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए गया तो पता चला कि हर रोज 5 से 10 लड़कियां जो हैं वो बेहोश होकर गिरती है, चक्कर आता है उनको। क्यों? उम्र हुई, माहवारी चालू है, पेट में कुछ नहीं है, खाली पेट चले गए। खाली पेट चले गए तो ताकत है ही नहीं, चक्कर खा खा के गिर रहे हैं। अच्छा खाना खिला के भेजो। काजू थोड़े गर्म पड़ते हैं, अगर किसी बच्चे का डाइजेशन थोड़ा गड़बड़ है तो काजू मत खिलाओ, पर आप मनुका खिला सकते हो। मनुका, बड़ी किशमिश खिला सकते हो, अंजीर खिला सकते हो। आप अखरोट से अपने बच्चों को जोड़ो। स्नेहनम स्थिर कारणम। देखो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, कई लोग बोलते हैं ना, माताएं बोलती हैं, पिता बोलते हैं, अरे बच्चा बहुत चंटे साहब, ये तो बात ही नहीं सुनता, हाथ ही नहीं आता है। हम बोलते हैं मालिश करो, अरे कैसे मालिश करें, पकड़ में ही नहीं आता है। तो अगर अभी पकड़ में नहीं आया तो बाद में कैसे पकड़ में आएगा? 2 साल 2.5 साल का बच्चा, 5 साल तक के बच्चों की खूब मालिश करो। मालिश कैसे करना है? नारियल के तेल से नहीं करना है। अब ठंड आ गई है, इसमें गर्म तेल चलेगा। गर्म तेल मतलब सरसों का नहीं, तिल्ली के तेल का प्रयोग शुरू करो। अगर अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो 1-2 जोड़ कपड़े कम खरीदना, 3 जोड़ कपड़े कम खरीदना, नया मोबाइल जरा मत लेना, पर तिल्ली के तेल से खाने को शुरू करो। घानी से निकला हुआ तिल्ली का तेल 1-1.5 महीने में देखोगे बहुत कुछ परिवर्तन आ जाएगा। सुबह उठते से नाश्ता करने की आदत इस मौसम में होना चाहिए। 12 बजे से पहले अपने को खाना खा लेना चाहिए। 3-4 बजे के आसपास ठंड में फिर भूख लगती है, डब्बा खोलो, 1 लड्डू निकालो और खा जाओ। हाँ, ये ऐसा हो तो कितना अच्छा है कि जो हमारी किरानों की दुकानें हैं आसपास, धीरे धीरे करके वो कुरकुरे, वो मिक्सचर, वो गाठी एक्सपायर ही हो जाए, उनकी अंत्येष्टि हो जाए और वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें। अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि हमारे इसमें 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, उपनयन संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, है ना। इसमें से 3 संस्कार जब गर्भिणी होती है तो उसके पेट में होते हैं। कौन से? सबसे पहले गर्भाधान। जब गर्भ का आधान हो जाता है तो सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान, बच्चा पेट में आ गया। दूसरे नंबर का संस्कार होता है पुंसवन। ये पुंसवन संस्कार जो है, वो पुंसवन संस्कार जैसे ही बच्चा 1 महीने का पेट में हो जाता है तो पुंसवन संस्कार किया जाता है। क्यों? ताकि वो अच्छा खाए पिए।
अच्छा खाए पिए, मतलब उसका जीवन अच्छी तरीके से चले, उसे आहार भी अच्छा मिले, पोषण भी अच्छा मिले पेट के अंदर, माता को उस हिसाब से खाना दिया जाता है। तीसरे नंबर का संस्कार होता है जो चौथे महीने में होता है, जब महिला गर्भिणी होती है, वो होता है सीमंतोन्नयन। तीसरे नंबर का संस्कार जो चौथे महीने में होता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो चौथे नंबर का संस्कार होता है उसको हम भूल गए हैं। हम लोग 16 संस्कार नहीं कर रहे हैं। आजकल कर्णवेधन भी नहीं हो रहा है। बाकी कर्णवेधन अगर कर लो तो पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या कम हो जाएगी, दमा आना बंद हो जाएगा। आप करके तो देखिए, छोटे बच्चों का कर्णवेधन जरूर करवाना, उससे उनकी बुद्धि जो है वो खुलेगी। शरीर में अलग अलग पॉइंट है, इधर बुद्धि का पॉइंट भी है। यहाँ कर्णवेधन करवाया, आप लाभ देखेंगे बच्चे के अंदर। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा जिस गर्भनाल से लगा हुआ होता है उसको काटा जाता है ना, सीजर से काट देते हैं उसको। उसके तत्काल बाद आपने पहले सुना होगा कि घुट्टी, सोने को, शहद को, वचा को, जटामांसी को घिस के जल्दी से घिसारा बच्चे को चटाया जाता था। ये है जात कर्म संस्कार, जिस संस्कार को हम सब भूल गए हैं। क्यों भूल गए? आजकल तो जो अर्वाचीन चिकित्सा है वो बोलती है कि नहीं ऐसे बच्चे को ऐसा हो जाएगा। तो अभी कौन से बच्चे तंदुरुस्त हो रहे हैं? इस संस्कार को महर्षि काश्यप ने आज से 2500 साल पहले विचार किया और स्वर्ण प्राशन का नाम दिया, जो हम अपने केंद्र पे करते हैं। स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र पे करते हैं, हर 27 दिन में पुष्य नक्षत्र आता है। ये बच्चों की धी, धृति, स्मृति, मेधा, कांति, बल, ओज, वीर्य, वंश वृद्धि, बौद्धिक क्षमता और दीर्घायुष्यता के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन से जोड़िएगा, और अगर स्वर्ण प्राशन से नहीं भी जोड़ा तो अच्छे आहार से तो कम से कम जोड़ी दो, अच्छे हाथों से तो जोड़ी दो। देखो, स्पर्श एक चिकित्सा है, स्पर्श भी एक चिकित्सा है। कोई आपको तमाचा मार दे तो अलग टाइप की चिकित्सा हो जाती है, कोई प्रेम से समझा दे, थपकी देकर तो एक अलग चिकित्सा हो जाती है। बच्चों को स्पर्श चिकित्सा की बहुत आवश्यकता है, दृश्य चिकित्सा की बहुत आवश्यकता है। हम देख ही नहीं रहे बच्चा क्या कर रहा है, हम सुन ही नहीं रहे बच्चा क्या बोल रहा है। तो बच्चों को बाहर ले जाना, बच्चों को घुमाना फिराना, बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए पहले हमको अपना अच्छा इंसान अपने अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। बच्चों को धार्मिक कथाएं सुनाएं, महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनाएं, इससे बच्चों के अंदर परिवर्तन आता है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे पास में 2-2, 3-3 दिन के लाए गए थे स्वर्ण प्राशन के लिए, और जिन माता पिता ने बहुत अच्छी तरीके से उनकी परवरिश की है, बच्चे बीमार ही नहीं होते हैं। बच्चे का बीमार होना अपने आप में बड़ा कठिन काम होता है। जब उसको ड्रिप लगती है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को सुइयां चुभती हैं। सोचो अगर बच्चा बीमारी ना हो तो कितना अच्छा हो। तो आपका बच्चा कभी बीमार न पड़े, आप लोग कभी बीमार न पड़े, आपके परिवारों का उत्थान हो, हम लोग एक अच्छे उन्नत भारत के भविष्य बन जाएं और सदा सर्वदा आनंदमयी जीवन को जिए, चिल्ला चोट से दूर हो, गाली गलौज से दूर हो, बच्चों को बहुत प्रसन्न वातावरण दे। ऐसा लगे कि जब बोले कि फला गांव में किसके घर में सबसे ज्यादा एकता है, किसके घर में सबसे ज्यादा प्रेम है, तो वो आपके ही रगा नाम ले। सबसे ज्यादा संस्कारी बच्चे, अरे जैसे ही निकलो वो बच्चा सीधे सर में पैर रख देता है, उसको आशीर्वाद देना ही पड़ता है। आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। जब आप किसी के सामने बच्चे को झुका देंगे या आप भी झुकेंगे, शत्रु भी बोलेगा जीते रहो, दूधो ना हो पूतो फलो। इसलिए समय हो गया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये मैं नीचे इसीलिए आया क्योंकि इतनी देर आप धूप में बैठे थे, तो मुझे भी धूप में खड़े होकर बोलने का दायित्व मेरा बनता है। आप लोग अपने बच्चों की अच्छे से केयर करें, उन्हें बहुत प्रसन्न रखें। जब वो 20 साल के हो जाएंगे, उनसे पूछेंगे आप क्या खेलते थे, उनको खेल ही याद नहीं आएगा। आपकी मौसी कहाँ रहती है? मौसी वहाँ रहती है, पर मौसी का चेहरा थोड़ा थोड़ा याद है मतलब एक बार मिले थे 15 साल पहले शादी में। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मौसियाँ और बुआ बरकरार रहें, चाचा और ताऊ का प्रेम उतना ही बना रहे, दादा दादी नाना नानी का बहुत लाड़ प्यार बच्चों को मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी के उन्नत और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों के बताए गए मार्गदर्शन के हिसाब से हम सभी स्टूडेंट्स और हम सभी अभिभावक इनका अनुसरण अवश्य करेंगे और इसका परिपालन करेंगे। कार्यक्रम समापन स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं हमारे प्रिंसिपल से अनुरोध करता हूँ। तो स्मृति भेंट किया जा रहा है। आज के जो हमारे प्रमुख स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको भी सम्मान प्रदान कर रहे हैं। पूजा मैम, सभी
Jai Shri Krishna. My name is Vir Kumar Goyal. My name is Soryojle. अरे विधान, तुम आज फिर बीमार पड़ गए। हाँ, पता नहीं, रोज मुझे सर्दी खांसी और बुखार हो जाता है। तुम रोज सुबह उठते ही तांबे के लोटे का जल नहीं पीते हो और एक्सरसाइज नहीं करते हो, वो तो बहुत जरूरी है। नहीं, मैं रोज सुबह उठते ही मोबाइल चलाता हूँ, चाय बिस्किट खाता हूँ और ढेर सारा नाश्ता करता हूँ, तभी तुम रोज रोज बीमार पड़ जाते हो। तो अब मैं क्या करूँ? तुम्हें हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना पड़ेगा। ओके, आज से मैं भी हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू। Good morning, Jai Shri Krishna. My name is Anna. ओह, आज तो मैं अपना होमवर्क करना ही भूल गई, कोई मेरी मदद भी नहीं करता। अरे ना, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा दूंगी और मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ा दूंगा। ओह, थैंक यू मम्मा पापा। फैमिली मीन्स लव, केयर और सबका साथ। थैंक यू।
तब्येत घट्ट लागतो र. अरे तू तर सुंदर नाही. तू सुबह काय करती? मैं उठू जाते मातन पाय लागून सबने जय श्री कृष्ण बोलू. वाया तो घरी येते चोलीचे. मैडम बोला हाथ धुनो, साफ रहनो, सबसे प्यार से बात करनो. वाया कई बात कई वो भी आदम पर अच्छे से दूंगा चाहिए. ध्यान देना. Good morning, Jai Shri Krishna. My name is Vinod. My name is Soryojane. आप लोगों के अरे विधान तुम बीमार पड़ गए. हाँ पता नहीं. मुझे सर्दी खांसी तुम लोग सुबह उठते ही तांबे के लोटे का जल नहीं पीते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, वो तो बहुत जरूरी है. नहीं, मैं सुबह उठते ही मोबाइल चलाता हूँ, चाय बिस्कुट खाता हूँ और ढेर सारा नाश्ता करता हूँ. तभी तुम रोज बीमार पड़ जाते हो. तो मैं क्या करूँ? तुम्हें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा. ओके, आज से मैं भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाऊंगा. थैंक यू. थैंक यू. वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Which color is this? कितना अच्छा बनाया, वेरी गुड. और आपका क्या नाम है? ले लीजिए. आप कौन सा कलर बनाओगे आप? डार्क ऑरेंज हो गया, तो पिंक शेड में आ गया. यहाँ पर अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया बनाया. हाँ. सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले. सवेरे सवेरे यारों से मिलने हद से दूर चले. रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम. बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम. स्कूल चले हम, स्कूल चले हम. ओ, 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 ओ,
मजे से दुनिया के राज खुलते हैं। कोई आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। स्कूल चले हम। ये कटोरी दाल, ये छोटा बच्चा को आधा कटोरी दाल, ये कटोरी दाल, ये कटोरी फलदार सब्जी लौकी, मास्टर वेनेट के पाटीदार करेला, जहाँ कहीं भी है ये कटोरी सलाद, टोकन काउंटर के पास आइए। मास्टर वेनेट के पाटीदार अब लग रहा है कि भूख लगी। जहाँ पर आपका स्टोर है, मास्टर हर्षल पाटीदार का स्टॉल और कॉफी वाला, वहाँ पर तुरंत आइए। तेल की जो ऊपरी बनाकर लगा दे, इसका हमेशा चलता कोराडा जो आता है, क्या बोलते हैं इसको आयुर्वेद में, कुछ भी लग जाओ, घाव हो जाए, उसको पीस के 10 दिन लगा दो। एक डाटी ये किसी प्रकार के घाव पे कोई काम करती है, वो अगर इसको तिल्ली के तेल में पका लिया जाए, इसका पूरा निकाल कर जड़ के साथ निकाल कर अच्छे से धो लो इसको, तो तिल के तेल में काट के इसको धीरे धीरे पकाएंगे। 2 तरीके, तो पानी में डाल कर इसका काढ़ा बनाओ, 1 बटे 16 कर दो इसको निकाल के फेंक कर पानी में, उस पानी को तिल के तेल में डालो और धीरे धीरे पकाना शुरू करो। कितना पकाना है, पानी उड़ जाए सकते हैं, इसकी पूरी प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाएगी। जल गया, घाव हो गया, रोपण गणन का रोपण करना चाहिए। हम जब छोटे थे और हमारे गांव में बेड़ी पर ये बहुत होता था, तो जब भी छिला जाते थे तो वहाँ से जाते थे पीस के इसका निकाल के बहुत काम का है, बहुत काम का है। पंचामृत से स्नान भगवान को करवाते हैं। आप पंचामृत से स्नान करके देखो कभी स्वयं अपना 50-100 ग्राम पंचामृत लेकर बढ़िया मालिश करके आप देखो, ना आपको कलंक नहीं चाहिए। घुटन किसी भी बैक्टीरिया वायरस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। शेष में तेल की मालिश, घुटन न मिले तो गेहूं का दरदरा आटा, जो आजकल स्क्रबिंग होती है ब्यूटी पार्लर्स में, उतना खर्चा करने की जरूरत ही नहीं। जल्दी से नारियल तिल्ली का तेल चेहरे पे लगाया, गेहूं का दरदरा आटा लिया, रगड़ना शुरू किया, गुनगुनी पानी से आप उसको धो लिया, वजह आपकी आजकल लोगों को आदत पार्लर पर जाने की पड़ता है। महिलाओं के लिए रामबाण महावारी अगर डिस्टर्ब है, नहीं आती बराबर, तो खाने के पहले इसका प्रयोग करना चाहिए। खाना की तरफ ऐसा होता है ना, हम सभी बीमार रहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, कोई भी काम नहीं बनता, तो इसको जड़ के साथ उठाओ और विशाल तोड़ में इसको बजरंग की धागे से उल्टाना, जड़ ऊपर में आप देखोगे आश्चर्यजनक तरीके से ये धीरे धीरे बढ़ो। आपके घर के अंदर की नमी नकारात्मक क्षमता को चूसना शुरू बड़ा महीनों लगा रहेगा बिना पानी के। हाँ, जिस घर में प्रकाश कम है या जिस घर में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अंदर जाने से बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है, उसमें नमक आप रख सकते हो साइड में, नमक एब्जॉर्ब करता है, नमी को एब्जॉर्ब कर देता है। आपने देखा होगा नमक मिलकर वो गीला हो जाता है, वो गीला नहीं हो रहा है, वो आपके घर के अंदर की नमी को चूस रहा है। इसलिए नमक से जो माता है जो उतारती क्या बोलते हैं इफेक्टिव फॉर्मूला है। नमक को पानी के अंदर डालकर नहाने का भी थोड़ा सा नमक पानी में अगर आप डाल के नहाओगे तो कोई भी बैक्टीरिया और जो वैसा है तो उसमें बैक्टीरिया पनप नहीं सकते, नमक कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कुछ मात्रा में किसी प्रमाण में डाल के नहाना चाहिए, उससे थोड़े दिनों में आपको बहुत लाइटिंग आता है। हम अपने सेंटर में नमक का ही पहुँचा लगवाते हैं, पानी में नमक घुलवा के, नमक और गोमूत्र डलवा के अपने सेंटर पर आजकल बच्चों को बोल दिया जाता है कि लड़का हंसी का नहीं वो अमेरिका ने उसको पेटेंट करवा लिया। ये सबसे काम की चीज़
ये हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। इसको देवताओं ने भी स्थान दिया है, इसलिए हमारे इसमें आंवल की आंवला क्या बनाते हैं 11 सोनी, इसको जरूर खाना चाहिए। देवताओं से इसका सीधा कनेक्शन है। महर्षि च्यवन बुढ़ापे में भी जवान हो गए थे। हर रोज 2 आंवले तो कम से कम इस मौसम में खाना ही चाहिए। और आप देखोगे उसका इफेक्ट आपको 2-3 महीने के बाद में दिखेगा कि शरीर के अंदर एक सही एनर्जी आती है। आंवला खाने मात्र से एनर्जी आ जाती है, मुंह में जब रस निकलता है उसमें। आंवला बहुत अच्छी चीज़, आंवला खाना चाहिए। इन सबसे ऊपर है ये एकमात्र ऐसा है इनमें, इन सब में एसिड है थोड़ा सा, इसके अंदर बिल्कुल एसिड है, इसमें नमक नहीं है। बाकी सारे पदार्थ षड्रसों से मिलकर बना है। मधुर अम्ल लवण कटु तीखी निशा है, इसके अंदर लवण रस नहीं। आंवले को नमक के साथ सेवन न करते हुए आंवले को कुतर के खाओ, आंवले का मुरब्बा खाओ, आंवले का अचार बनाओ, आंवले की चटनी सुपारी जो बनती है नमक नहीं, नमक के साथ निषेध बनती है। नमक के साथ अगर लाभ चाहिए तो एक तो रसायन का जो सुबह का समय सूर्य उदय हो रहा है, अगर उस समय आप लोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। उसमें भी देशी आंवला बेस्ट है, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, कड़वे थोड़े पद रहता है, वो आंवला बेस्ट होता है। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। भाई से यारी, बहनों से मस्ती, उड़ती पतंगों जैसा था मन। जितने थे रिश्ते सारे थे मन के, उनमें न उलझन ना थी जलन। होती ना थी अनबन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। खाने की चिंता, सोने की फिक्रें होती भी थी तो होती थी कम। खुशियाँ जुड़ी थी खिलौनों से अपनी, खबर ही न थी क्या होता है गम। पावन थे सब बंधन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ,
दर्पण बता बचपन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। क्यों हो गया वाह खुदा क्या बात है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। चल पड़े हैं हम सफर, अजनबी तो है डगर। लगता हमको मगर कुछ कर देंगे हम, मगर ख्वाब में जो दिखा पर था छिपा बस जाएगा वो नगर। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। यादों का बस्ता लेकर चले हम, जाने कहाँ और क्यों। साथ छोड़ चुके हैं दूर हो गए हैं, जाने कहाँ और क्यों। यादों का बस्ता लेकर चले हम, जाने कहाँ और क्यों। साथ छोड़ चुके हैं दूर हो गए हैं, जाने कहाँ और क्यों। हम जो साथ हैं
बसी, मिलने के हालात नहीं। जगह वो पुरानी, बारिश का पानी है अब तक थी जैसे कभी। न हम बदले ना ही बदले कभी भी, वैसे के वैसे अभी। यादों का बस्ता फंस जाए भले। थे दिन जब बचपन के हम गलती करते थे, डरते थे अब तो गए। यारी निभाते, एक दूजे को बचाते, चाहे खुद फंस जाए भले, चाहे खुद फंस जाए भले। मिलते रहेंगे अगर हो सका तो, वादा नहीं मैं कर रहा। जाने कहाँ मेरी मंजिल ले जाए, खबर मुझे जरा भी नहीं। दिन और रात वही, वैसी बात नहीं। फासले सरगम से धुन ये बनी है, भूल से भूलेंगे नहीं। जब मन करे याद कर लेना हमको, यादें तो जाए ना। स्कूल के दिन जब भी याद आते हैं, वो स्कूल के दिन, स्कूल के दिन, वो स्कूल के दिन जब भी याद आते हैं, वो स्कूल के दिन। कोई चाहता डॉक्टर बनना, तो किसी का स्पोर्ट्स को चुनना। यहाँ म्यूजिक की भी चाहत, तो आर्ट्स में मिलती राहत। यहाँ सपनों को भी पंख लग जाते हैं। स्कूल के दिन, वो स्कूल के दिन जब भी याद आते हैं, वो स्कूल के दिन, स्कूल के दिन, वो स्कूल के दिन जब भी याद आते हैं, वो स्कूल के